गुड मॉर्निंग क्लास। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब और आज डेट है 7 जुलाई 2026। कल हमने 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9408 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 9408 इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 2 से करते हैं। 470 4 2 3 5 2 देन 2 से 1 1 7 6 देन अगेन 2 से 5 8 8 देन अगेन 2 से 2 9 4 देन अगेन 2 से 1 4 7 then this number is not divisible by 2. We'll check for 3 4 9 then this is not divisible by 5 and the next prime number is 7 then 7 7। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने आए? प्राइम फैक्टर्स पेयर में लिखते हैं 1 2 3 and 4. We don't have a pair of 3. 2 into 2 2 into 2 2 into 2 then 7 into 7 then 3. We don't have pair of 3. Now how to find the perfect square? For this number to become the perfect square we need one more 3 here. One more 3 how will you get? When we multiply this number by 3 we'll get the 1 more 3 as a prime factor of the product. So the answer will be 3. Answer will be 3 because this number is not paired. How will you get this? How will you get the product? By multiplying by 3. What is the number? 24 12 28. This is the number and you have multiplied by 3 and then this become the pair 3 into 3. Next क्या था हमारा? Find the square root of the product. So our answer, first answer is our first answer is 3. The smallest number is 3 which is multiplied by which this number is multiplied so that the product will become the perfect square. Now this is the perfect square and next is find the square root of the product. You have already you have to find the square root, which is the method which we use prime factorization method and we have already done the prime factors. Then we will find out, take one number from each pair, 2 into 2 into 2 into 7 into 3. The product of this number is the root of this number. 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24. Then 24 into 7, 7 4 is 28, carry 2, 7 2 is 14 or 2 16. So your number is 168. 168
is the square root. Let's check once again. 8 is a 24, and 24 into 7, 7 for the 28, carry 2, 7 to the 14, 14 into 16, so 168. Second answer is 168. 168 is the square root of 28224, which is the product of 9408 into 3. Now we will move to the next question. Our next question is, how many numbers lie between the squares of the following numbers? ठीक है, फर्स्ट इज 16 एंड 17, 19 एंड 100. हमको पता करना है कि 16 और 17 के बीच में के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे. ठीक है, इस सॉल्यूशन को देखने से पहले हम एक बात समझते हैं. सपोज मैंने आपको एक नेचुरल नंबर का सीरीज लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ टेल मी how many natural numbers are between 1 and 8? How many natural numbers are between 1 and 8? If you subtract 8 minus 1, you get the result 7. So 7 is the answer. You can check 1 2 3 4 5 6. No, the correct answer is 6. Means when you have to find out the numbers between the two numbers, you have to exclude these two numbers. आपको ये दो नंबर exclude करने पड़ेंगे, then you will get the result. Means answer is 6. Correct answer is 6. How many natural numbers are between 1 and 8? 6. Because we have to exclude 1 and 8. But when you do subtraction, 8 minus 1, you will get the answer 7, which is not the correct answer. ठीक है? We apply the same concept to find out the numbers between the squares of these numbers. Now see, first find out the squares. 16 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो 256, एंड 17 का स्क्वायर 289. अब इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? You simply subtract 289 minus 256. Now you get this result 33. Now when you subtract this number from this number, you will get the result 33. Means this number has included this number 289, and you want the number between 256 and 289. How will you get that number? By subtracting one more. Subtract minus 1, then you will get the result 32. Then answer is 32. 32 numbers are between 256 and 289, which are the squares of 16 and 17. How will you get this number? By subtracting this number, then additionally subtracting minus 1. The same thing we will apply, the same formula we will apply to the second. This answer is 32. Now see, square of 99. Square of 99 and square of 100. Now see, I am going to tell you another trick to solve this question. See, what is the square of 99? You might be not knowing, say any number, but what to get the square of 100, what you are supposed to do?
you are supposed to do प्लस क्या करना है आपको, nth means 100th odd number to this number, means 100 odd number, 100 odd number to this number. You have to add 100 odd number to this number, you will get the result square of 100. And then what is the 100th odd number? We have formula, nth odd number 2n minus 1, we apply the same formula. 100th odd number for 2 into 100 minus 1, that is 200 minus 1, that is 199. Now see, 199 is the number which you add to the square of this number, you will get this number. What does it mean? What does it mean? Means if you subtract square of 100 minus square of 99, you will get 199. Understood? Now जो हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था कि हमको पता करना है कि 100 के स्क्वायर और 99 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, ठीक है, एंड इस स्क्वायर में ऐड करने पे ये नंबर आता है, तो हमें इसमें 1 माइनस और करना पड़ेगा. व्हेन वी subtract one more, 199 minus 1, we get the answer 198. So this is our answer, 198. means 100 के स्क्वायर और 99 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, दैट इज 198. बिकॉज 99 के स्क्वायर में जब हम 199 ऐड करते हैं जो कि nth ऑड नंबर है 100 का, आई मीन 100th ऑड नंबर है, दैट इज 199, तो फिर हमें स्क्वायर मिल जाता है 100 का. तो हमने जब ये माइनस किया और तो हमें ये नंबर मिल गया, लेकिन हमें इसमें से एक और माइनस करना पड़ेगा इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच में कितने हैं. टू एक्सक्लूड दिस नंबर एंड दिस नंबर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 अगेन. अंडरस्टूड? सो these are the answer, 32 and 198. You can apply this formula here also. See what we are supposed to find, 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, ये होगा 70th ऑड नंबर. 70th ऑड नंबर हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 17 माइनस 1, 34 माइनस 1, दैट इज 33. You get the 33. नाउ इसको ये नंबर और ये नंबर के बीच के बिटवीन, हमें बिटवीन नंबर्स निकालने हैं, उसके लिए हमें इसमें 1 माइनस और करना पड़ेगा, 32 इज द आंसर. वी गॉट दिस. ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच के नंबर्स आप निकाल सकते हैं. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग पैटर्न वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर. ये हमारे मिसिंग नंबर हैं. तो सबसे पहले हम ये जो हमें पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न को डिकोड करते हैं, उसके बाद में फिर हम पता कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा. तो आप इस पैटर्न को जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न एंड थर्ड पैटर्न ये कंप्लीट है, तो इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या पैटर्न है हमारा. सपोज नाउ सी, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3, देन दिस इज 2, 3, 6 एंड 7. ठीक है, 7 का स्क्वायर है. तो अब हम देखेंगे कि सी, अगर हमारा ये ए है, 1 नंबर इज ए, फिर हमने ए का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो दूसरे नंबर को हमारा क्या आएगा, सपोज ये आ रहा है हमारा a प्लस 1, इसका हमने स्क्वायर कर दिया. फिर हमने क्या किया,
यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 3 6 आ रहा है, मीन्स 2 3 जा 6 मीन्स, और यहाँ पे 3 4 जा 12 मीन्स इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन और उसका स्क्वायर मीन्स नंबर ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस 1 और इस पूरे नंबर का स्क्वायर। देन ये क्या हमारा 2 है तो 3 आ रहा है, 6 है तो 7 आ रहा है, 12 है तो 13 आ रहा है। व्हाट डज इट मीन कि ये जो नंबर है इसमें +1 कर देंगे, उसका स्क्वायर हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है। मतलब ए इंटू ए प्लस 1, ये जो नंबर आ रहा है इसमें हम +1 कर देंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा, और इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। ये पैटर्न हमको समझ में आ रहा है। मैं इसको और आसानी से बताता हूं कि नेक्स्ट नंबर हमारा जो है एक एडिशन करने पे है, जैसे 1 1 + 1 2 2 2 + 1 3 3 3 + 1 4 4 4 + 1 5 9 9 + 1 10। ठीक है, जो हमारा सेकेंड नंबर आ रहा है वो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। 1 1 × 2 2 का स्क्वायर, 2 × 3 6 का स्क्वायर, 3 × 4 12 का स्क्वायर, 4 × 5 20 का स्क्वायर, सो 9 × 10 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 90 का स्क्वायर। अंडरस्टूड, यहाँ पे क्या आएगा 90 का स्क्वायर। फाइंड आउट द वन नंबर नाउ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जब हम यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर 2 आ रहा है तो ये +1 3 का स्क्वायर हो जा रहा है, ये 6 है तो +1 7 का स्क्वायर हो जा रहा है, ये 12 है तो +1 13 का स्क्वायर हो जा रहा है, ये 20 है तो ये +1 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 90 है तो ये हमारा 91 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड जो हमने पैटर्न को डिकोड किया है वो ये है कि फर्स्ट नंबर हमारा ए है तो सेकेंड नंबर हमारा a + 1 हो जाएगा। सी, फर्स्ट नंबर हमारा ए है तो सेकेंड नंबर हमारा a + 1 हो जाएगा, थर्ड नंबर हमारा a × a + 1, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो है हमारा a × a + 1। ये जो इसका रिजल्ट आएगा इसमें +1 और कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा पैटर्न स्टैब्लिश हो रहा है। इनका आपस में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हो रहा है, a² + a + 1 का स्क्वायर प्लस a × a + 1 का स्क्वायर। दिस in this way you can solve and you can draw the next pattern also. How we will draw, let's see. We will do one more pattern like see, it is here 11. now 11 का स्क्वायर, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 11 + 1 12 का स्क्वायर, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 11 × 12 कितना आता है, 11 × 12 132, तो ये होगा 132 का स्क्वायर। और नेक्स्ट पैटर्न के हिसाब से हमको वी डोंट हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस। पैटर्न के हिसाब से हमारा क्या है 20 का 21 है, 90 का 91 है, तो ये हो जाएगा 133, हमने +1 कर दिया और इसका होल स्क्वायर। You can verify. So in this way we have decoded this pattern and we have decoded and we found the answer 21, 90 and 91. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका फिगर है, इसमें आपको हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर यू हैव टू फाइंड आउट। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। वन स्क्वायर इज हैविंग 5 × 5 25 tiny squares, and how many these 5 squares you have 9 × 9. So your answer will be 25 × 81. This is your answer. How many tiny squares you have? Question 9. How many tiny squares? ठीक है,
and this is your answer. 25 into 81. 2025 is your answer. Understood? So this is all for today's class. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूब्स के बारे में और क्यूब रूट्स के बारे में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.